السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ ہم نے عربی جملہ مکمل کرنے کی 4 پہلو تھے جن کو جاننا ضروری تھا کہ جب تک کہ 4 پہلو ہمیں نہیں پتہ ہو تو ہم جملہ نہیں بنا سکیں گے. جملہ بنانے کی شرائط یہی تھی کہ چاروں پہلو پتہ ہوں. وہ چاروں پہلو سے ماشاءاللہ آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہاں میں نے بورڈ پہ اس لیے اس کو دوبارہ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور جملہ بناتے وقت آپ اس کا خیال رکھیں. تو آج ہم شروع میں ہم نے جو کیا جتنے بھی ہمیں 4 جو چیز تھی اعراب جنس عدد وسعت, اس میں ہم نے واحد دیے, ایک لفظ دیا اور اس کو ہم نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں ہے, اس کے مذکر ہے مؤنث ہے یا رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے, ان سب کے پارٹس دیکھیں کہ ہے یہ کیا. پھر واحد کو ہم مفرد کہتے ہیں. مفرد تو مفرد پلس مفرد جب 2 ہو جاتا ہے تو مرکب ہوتا ہے. کم سے کم 2 ہونے چاہیے جسے مرکب کہیں گے. آپ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم 2 الفاظ کو جمع کیے جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب. مرکب جو ہے عربی زبان میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مرکب ہے جس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا, مثلا نامکمل سا جملہ لگتا ہے. جب دیکھیں گے اس کو کالا پتھر, کالا پتھر اس کو تو پیلی گائے یا زرد گائے, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ ہے کہ کوئی جملہ نہیں بنا ہے لیکن مفہوم تو سمجھ آتا ہے. تو یہ نامکمل جملے کو ہم ناقص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناقص. اور جب جو جملہ مکمل ہوتا ہے, جیسے یہ لڑکا ہے, یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ ہے. گائے جو ہے زرد رنگ کی ہے, جملہ مکمل ہو گیا, پوری بات ہو گئی. تو اس کو جملے کو جملہ تام کہتے ہیں, مرکب تام کہتے ہیں. اس کو جملہ بھی کہتے ہیں, مرکب تام کہتے ہیں. تو جو یعنی کہ مکمل جملہ نہ ہو رہا اسے ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص اور مرکب تام. اب مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں, 4 قسمیں تو بالکل نہیں ہیں. تو مرکب ناقص ہم پڑھیں گے. مرکب ناقص کا اصول یہ ہے کہ ہم چاروں پہلو میں ان دونوں لفظ کو لکھیں گے کہ جو بھی ہوگی کسی بھی مرکب میں ہو اس کے دونوں کو دیکھیں گے اور دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے, یکساں. تو جب یکساں ہوگا تو وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہیں پہ بتا چاہتا ہوں, مرکب تام کی بھی پڑھاؤں گا نہیں لیکن بتا دوں. مرکب تام کا یہ ہے کہ ایک اگر معرفہ ہے تو دوسرا نکرہ ہوگا, وہ مکمل جملے کا پہلو اور وہ اس کے معنی کرے گا. آئیے پہلے شروع سے دیکھ لیتے ہیں کہ مفرد جمع مفرد مرکب. مرکب 2 قسم کے ہیں. ایک سریز میں لکھا تاکہ آپ کو دیکھنے میں اور پڑھنے میں بھی فرق ہے. مرکب ناقص
मरकब नाकिस को हमने नामुकम्मल जुमला कहा, मरकब ताम मुकम्मल जुमला कहा। मरकब नाकिस के जो है मरकब तौसीफ़ी, मरकब इज़ाफ़ी, मरकब इशारी, मरकब जारी, 4 जो है आपके मरकब। आज जो हम पढ़ेंगे मरकब तौसीफ़ी पढ़ेंगे, लेकिन अब मरकब ताम भी मुकम्मल जुमला है, इसके भी 2 वो है, 2 किस्में हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक इस्मिया जुमला होता है, एक फ़ेलिया जुमला होता है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस्मिया जुमला है तो जो जुमला इस्म से शुरू हो उसे इस्मिया जुमला कहते हैं, जो फ़ेल से शुरू हो उसे फ़ेलिया जुमला कहते हैं। इत्तफाक ये है कि लोग जी फरमाइए। हाँ नहीं, ये एक तो ये है मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी एक लफ्ज़ है दूसरे लफ्ज़ की तारीफ़ करता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ होता है। मुरक्कब इशारी, इसमें एक लफ्ज़ इशारा होता है, दूसरा लफ्ज़ उसका मुशार अलैह होता है। इससे मुरक्कब जारी एक जार होता है, दूसरा मजरूर होता है। तो ये अलग अलग मुरक्कबात हैं। हाँ, ये मुरक्कब नाकिस की इसमें आते हैं। तो इसमें जुमला और फ़ेलिया जुमला के बारे में हमने इत्तफ़ाक़ किया है कि हमने उसको फ़ेलिया जुमले भी हमने जब शुरू में पढ़ा रहे थे तो हमने फ़ेलिया जुमले भी लिख लिए थे। बहरहाल फ़ेलिया जुमले उसे कहते हैं जो फ़ेल से शुरू हो, इसमें जुमला उसे कहते हैं इसम से शुरू हो। और अरबी ज़बान ऐसी ज़बान है कि बग़ैर फ़ेल के भी इसमें जुमला मुकम्मल हो जाता है, जो हमने पिछली दफ़ा देखा और हम करते आ रहे हैं। तो आइए देखेंगे मरकब तौसीफ़ी के कौन से 2 पहलू हैं। एक लफ्ज़, 2 लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ जो है दूसरे लफ्ज़ की तारीफ़ बयान कर रहा है, जिसकी तारीफ़ बयान कर रहा है उसे मौसूफ़ कहते हैं। 2 लफ्ज़ है हमारे पास, एक लफ्ज़ जो है दूसरे लफ्ज़ की तारीफ़ क्या कर रहा है, जिसकी तारीफ़ बयान कर रहा है उसे क्या कहते हैं, मौसूफ़। और जो तारीफ़ के लिए लिखा जा रहा है उसको सिफ्त कहते हैं, एडजेक्टिव। सिफ्त हम उर्दू में पढ़ते हैं, सिफ्त जैसे सिफ़ात, उनकी सिफ़ात ये है, ठीक है। तो सिफ्त जो है ये वो इसम है जो सिर्फ बयान करे। मौसूफ़ इसम की सिर्फ बयान की जाए, ठीक है। और सिर्फ वो है वो लफ्ज़, इसम का वो लफ्ज़ जो सिर्फ बयान करे, ठीक है। पहली बात इसमें नेक लड़का, जर्द गाय, काला पत्थर, ये सब हमारी बात। इत्तफाक की बात यह है कि इंग्लिश और उर्दू में पहले सिफ्त आती है, बाद में मौसूफ़ आता है। इसलिए हमें देखने में सोचते हैं कि अब ट्रांसलेशन करनी है तो क्या करें, तो उसके लिए होता है हम क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ताकि उसके ऊपर खिलाफ होता है। अरबी में पहले मौसूफ़ आता है और बाद में सिफ्त आता है। यहाँ पर है नेक लड़का, नहीं, तो इसमें मौसूफ़ कौन सा है, लड़का। सिर्फ क्या है, जर्द गाय, गाय मौसूफ़, सिर्फ पत्थर मौसूफ़, काला। इसको अरबी में देख लेते हैं, अल वालदु सालिह, ये इसकी एक और शर्त जो है वो ये है कि जैसे जब मैं बता रहा था आपको कि इसके जितने भी मरकबात हैं उसमें जो अराब होगा पहले अरब पर वही अराब दूसरे अरब का होगा। अगर रफ़ा है तो ये भी रफ़ा होगा, दोनों रफ़ा होंगे, मौसूफ़ भी रफ़ा होगा और सिर्फ भी रफ़ा होगी। अगर अल से करके उसको लिखा होगा, मार्फा बनाया गया होगा, तो दूसरे को भी हम मार्फा बनाएंगे, उसके ऐन मुताबिक होगा। जैसे बकराओ मोन्नस है और ये इसका रंग का कलर रंग भी मोन्नस, क्योंकि ये मोन्नस है इसलिए रंग भी मोन्नस लिया। ये भी है ना
मार्फा में और ये भी मार्फा में, ये मोनस, ये भी मोनस, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, तीनों बात से वाहिद है। ये मोनस ये शुरू से देखें तो ये रफा में है, ये भी रफा में है, ये देखें ये मोनस है, ये भी मोनस है। अदब से देखें ये भी एक है, ये भी एक का इस्तेमाल होता है। वसुत में ये मार्फा, ये भी मार्फा, ये जरे अस्वद है, जरे अस्वद है। जैसा ये होगा वैसे ही होगा, ये नकरा है, ये भी नकरा होगा। ये जब मार्फा होगा तो ये मार्फा होगा। इसको आप लाजमत है, मैं बयान कर रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं आपसे, आंखों से देखेंगे, आंखों से ही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुरक्कब तौसीफ में सिफ्त इस्म के ऊपर लिखे हुए चारों पहलू के एतबार से मौसूफ के ताबे होगा। सिफ्त क्या होगी? मौसूफ के ताबे होगा। जैसा मौसूफ होगा वैसे सिफ्त होगी, ठीक है। मौसूफ की अरादी हालत जिन्स अदद फुर्सत के पहले को देखा जाएगा। किसकी देखा जाएगा? मौसूफ, और इसी एतबार से उसकी मुताबिकत से उसकी सिफ्त लिखी जाएगी, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिर्फ बाद में आती है। उर्दू में सिर्फ पहले आती है, इंग्लिश में इससे पहले थी। ब्लैक बॉय, गुड बॉय पहले आती है, जैसे उर्दू में अच्छा लड़का। तो इसमें ये देखिए, ये अजरुन है, ये क्या है? ये क्या है? मौसूफ है। इसकी सिर्फ क्या है? अजीम। अजरुन इसके हिसाब से किस इसमें है? रफा में है, और दो पेश लगा हुआ है, तो क्या है? नकरा है, नकरा है। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस के ज़हन में आपको चार्ट घुमाएंगे, कसौटी जो बनी थी, मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होगा, ठीक है। और कौन सा पहलू है? क्या सिंगल है? ये भी सिंगल है। चारों पहलू हमारे हो गए। तो अजरुन अजीमुन के बनने यहाँ हम करते ही हैं, ये लोगों ने किसी ने बता दिया। अजीम माने एक बड़ा, उर्दू में पहले बड़ा कहें, एक बड़ा। एक बड़ा क्यों किया? क्योंकि ये नकरा है। नकरा के लिए होता है एक, कुछ, चंद, इस तरह के इशारा करते हैं। लेकिन मार्फा के लिए हमारी उर्दू ज़बान में कोई लफ्ज़ नहीं है, खुसूस लफ्ज़ नहीं है। इसलिए मैंने ख़ास तौर पर इसको इंग्लिश में भी लाजमी लिखा है, ताकि आपको पता चले कि नकरा ए और जो मार्फा है वो दी से शो करते हैं, ठीक है। क्लियरली कोई बात समझ में आ रही है? अगर कुछ कहीं भी है यानी बात गंभीर लगी हो, वहाँ लोग तो कहें कि एक दफ़ा फिर समझा दें, या ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि हो सकता है कि बाज़ औक़ात मैं अपनी ज़बानी में चल रहा हूँ और आपको कोई बात समझ में ना आ रही, तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं पास पूछ लूँगा क्या बात है, ठीक है, ताकि उसको मैं दोबारा बयान कर सकूँ। तो अजीम के माने एक बड़ा, इसको एक ग्रेटर क्या है? ग्रेट, एक है मान से जो होता है, तो एक ग्रेट रिवार्ड, एक बड़ा बदला। ये आइए अल मोइज़ातु, ये मार्फा में है, अल लगा हुआ ना, मोइज़ातुन था, अल लगाया तो मोइज़ातु हो गया। ये ती की वजह से क्या बता रहा है कि क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस? मुअन्नस है। तो मुअन्नस ही सिफत लाएंगे हम, तो अल मोइज़ातुन हसनातु। हसनातु माने हसन माने प्यारा, खूबसूरत।
تو اچھا حسنہ میں اچھی مونس ہے نا، اچھی نصیحت. یہ یاد رکھیں گے کیا موعظات کے معنی کیا ہے اور الموعظات معنی نصیحت. چونکہ اس میں ال کی وجہ سے یہ کیا ہوگا دی، ہمارے اس میں کچھ وہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے لیے وہ ہے جواب ہے کہ ہم لکڑا کو بتا دیں ایک چند یہ، اور جب ہمیں معرفہ کرنا ہوتا ہے تو ہم صرف اس چیز کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو دی گڈ ایڈوائز، دی گڈ ایڈوائز ایک ہی طریقہ. المسجد الحرام یہ کیا ہے؟ مسجد. مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اس کو صوتی میں گزاریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اردو نہیں ہے، عربی ہے یہ. آپ کی اردو زبان میں مؤنث ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اردو زبان میں مؤنث ہے لیکن عربی زبان میں مذکر ہے. وہ کسوٹی جو ہے نا وہی میں نے جو پڑھایا ہے اس کو اس لیے میں نے ایک ایک دن دیا سب کے لیے جنس پڑھاتے وقت میں نے، اور وہ آپ کسوٹی سے ہمیں دیکھنی پڑی مؤنث کی. باقی سب تو جب کسوٹی سے گزر گیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں آئے نہیں اس لیے مذکر ہے. ال جو ہے کیا بتا رہا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ بتا رہا ہے. اچھا یہ پیش کیا بتا رہی ہے؟ رفع ہے یا نصب یا جر؟ رفع. تو اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے ہم اس کی اصل میں یہ حرمت والی مسجد ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ المسجد ال تھا، ال لگا ہوا اس میں، پیش اس میں بھی ڈالیں گے اور مذکر یہ بھی ہوگا تو المسجد الحرام. ٹھیک ہے، حرمت والی مسجد. اب یہی حرمت والی مسجد ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن اس لیے ہم نے اس کو لکھا ہے سیکریٹ ماسک. کتاب مبین یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو کتاب کیا ہے؟ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. اچھا اس کی عربی حالت کیا ہے؟ رفع ہے. اچھا اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اچھا عدد کے حساب سے کتنی ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع نہیں، واحد ہے. تو اس کے حساب سے ہم اس کو مبین مانے واضح کھلی ہوئی. کتاب مبین جیسا یہ تھا ویسے ہم نے اس کی جو صفت تھی اسی طرح موصوف کے حساب سے ہم نے یہ لکھی. ٹھیک ہے، اس میں بھی دو پیش ہے، اس میں دو پیش ہے، یہ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. تو اس کے معنی ہوگا ایک واضح نکرہ ہے کہ نکرہ کی پہچان ہے ہمارے پاس، یہ واضح یعنی کہ کھلی ہوئی کتاب. این اوپن بک، این اوپن بک اس سے پتہ چل رہا نکرہ یہ، اور دی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معرفہ ہے. یہ قرآن پہلے کون سی اس میں عربی حالت کون سی اس میں؟ عربی حالت رفع نصب جر میں کون سا ہے؟ رفع میں ہے. اچھا پھر یہ جنسی حالت اس کون سی؟ مذکر ہے مؤنث؟ قرآن کیا ہے؟ مذکر ہے. ویری گڈ. اچھا مذکر ہے، سنگل ہے، واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع؟ واحد ہے. ویری گڈ. اب اس کے حساب سے ہم رکھیں گے تو قرآن عربی، قرآن عربی تو ایک عربی قرآن.
تو اتفاق سے سارے جو ہیں واحد کے تھے. پھر ہم نے ایک دفعہ وہ بات کرنی ہے کہ جیسا موصوف ہوگا، موصوف اگر مثنیٰ ہوگا، مثنیٰ مانے جو ہوگا ڈوئل ہوگا، تو ہم اس کی تعریف بھی ڈوئل بیان کریں گے. موصوف اگر جمع ہوگا تو ہم اس کی تعریف بھی جمع ہوگی. اور ہم پڑھ چکے ہیں تعریف اور موصوف کی بارے میں کہ کون سی یعنی کہ موصوف کون سا موصوف جو ہے جمع کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفت کیسے ڈوئل بنتی ہے یا جمع بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ ہے تثنیہ. تثنیہ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈوئل. جب تثنیہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب دو. ہم لفظ ایک لکھیں گے لیکن اس کی معنی دو پتہ چل جائے گا. رجلان، اس کی پہلے میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب. جر ہے. جر ہے. ابھی آپ ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا اینا. نہیں ایک میں نے کہا تھا زیر زبر پیش عرابی حالت نہیں ہوتی. عرابی صرف آپ کو واحد میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم حرکات سے صرف شو کرتے ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آنی جو ہے ڈوئل کے لیے رفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عینی جو ہے جر اور نصب کے لیے ہوتا ہے، مفعول اور اضافی حالت کے لیے. تو آنی جب بھی کہیں گے تو کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. رفع ہوگا. یاد آ گیا؟ لگتا ہے ویڈیو دیکھتے نہیں آپ بس زیر کی پہچان سے یاد آئیے تھا. ہاں اشارہ تو وہ ہے لینڈ ہوگا. نہیں. ہاں تو آنے جو ہے رجل آنے، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ رفع ہے. ٹھیک ہے. یہ زیر سے مت لیں، یہ میں نے کہا تھا کہ شروع میں اسی لیے میں اس طرح بول رہا تھا کہ زیر زبر رفع نصب نہیں ہوتا، وہ ساؤنڈ ہوتی ہے جس سے ہم پکڑتے ہیں ان سے. اور آنے رفع ہے اور عینی نصب ہے، اور اسی طرح جمع کا اونا ہے اور اینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رجلانے آپ نے بتا دیا مجھے کہ یہ رفع ہے. یہ جنس کون سی اس کی؟ جنس مذکر. معنی نہیں پتہ اس کی معنی پتہ ہے؟ آدمی ہے، دو آدمی. تو مذکر ہے مؤنث. مذکر. بہت سی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے خاص طور پہ یہ وجہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں پوچھیں کہ مذکر مؤنث کیا ہے تو آپ اس وقت تک نہیں بتا پائیں گے کہ جب تک اس کے معنی نہ پتہ. اسے ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں. جیسے امن کہنے، امن کے معنی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا سکیں گے کہ یہ مؤنث ہے مذکر ہے. آپ بتائیں گے امن کے کیا معنی؟ مذکر ہے مؤنث. اس کی معنی نہیں پتہ آپ کو. امن کے معنی ماں، مذکر ہے مؤنث. یہی بات کر رہا ہوں کہ جیسے بنت ہے، بنت کے معنی آپ کو نہیں پتہ، اگر اس کے معنی پتہ ہو تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس حقیقی مؤنث میں جب بھی ہوگا، جیسے میں پھپھا کہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ پھپھا کون رہتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ام کہوں، ام پہ آپ نہیں پتہ معنی، میں کہوں چچا تو آپ کہیں مذکر. ام ماتوب کہوں تو آپ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ اب معنی اگر پوچھوں گے آپ کیا بتائیں گے؟ ام ماتوب عورت تو ہے لیکن پھپھی. یہ بات یاد رکھیے کہ ہم یہ ایسے ہوتا ہے امن جو ہے چچا ہے، اماتم جو ہے پھپھی ہے. خالہ تو سنتے ہیں آپ لوگ. خالہ کا مذکر کیا ہوگا؟ خال. خال کے معنی کیا ہوگا؟ ماموں. خال کے معنی ماموں. اسی لیے یہ بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے ہمارے اس میں چچا چچی پھپھا پھپھی اس طرح ہوتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں اس کی بہن کے حساب سے چلتے ہیں. آگے چلیں. رجولانے کا کر رہے تھے تو یہاں آپ نے اس کا بتا دیا کہ رفع ہے. دوسری بات آپ بتا دی کہ مذکر ہے
तीसरी बात बताइए कि ये वाहिद है तस्निया है? तस्निया तस्निया है। अच्छा, और ये नकरा है या मारफा है? नकरा। गौर कर लें आप लोग, नकरा है। दो लड़के कौन कह रहे मारफा? आपको क्या? अच्छा, मारफा उन्होंने कहा। नकरा क्यों है और मारफा क्यों है, फिर बताएगा? इसमें अल नहीं लगा हुआ। नहीं, दो आदमी तो है, दो से या एक आदमी था तो पता नकरा हो जाता। डिग्री लगा और ये जो है अल नहीं लगा हुआ, इसलिए नकरा है। ठीक है ना? अच्छा, चारों चीजें हमने देख ली। इसके मुताबिक से हमें इसको कहना सालिहुन है, यानी सालिहुन, लफ्ज़ सालिहुन था, लेकिन चूंकि ये दो का है इसलिए सालिहानी। सालिहानी कहेंगे तो रफ़ाई हो गया या सालिहानी। और फिर ये भी मुज़क्कर है, तस्निया है और नकरा है। इसके माने होंगे दो नेक आदमी। तो टू राइटियस मैन, रेजगार आदमी या नेक आदमी। अच्छा, अब मैं करने को बोलता है कि कल टाइम निकल जाएगा तो हम फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, वो एक एक लफ्ज़ लेके कि उसके वाहिद तस्निया और जमा बना लेंगे, मुज़क्कर का भी मुअन्नस का भी, ताकि ये की प्रैक्टिस हो पाए। वो मैं आपसे बनवाऊंगा ताकि ये पता चले कि आपको आयातुन ये क्या है? जमा है? जमा है। जमा है। इसकी वाहिद कोई बताएगा? आयातुन, सही है, वेरी गुड। आयातुन, आयतुन आयातुन नहीं, आयातुन ये लिखा हुआ आयातुन या तो निशानी तो वो हो गया ना, जमा हो गया ना। ये तो जमा है, लेकिन ये आ या सिंगल जो है ये आयतुन होगा ना ये। आयातुन, ये जो है इसमें ये के ऊपर अलिफ तो नहीं है ना, इसको खींचेंगे तो नहीं ना। नहीं, इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे। आ या ये तो जमा में आ गया ना। जमा में आ गया। मैं इसे ही पूछ रहा था कि इसका आयातुन का वाहिद सिंगुलर क्या है? सिंगुलर क्या है? तो ये है, ठीक है। डुअल क्या होगा, यानी तस्निया क्या होगा? आयातुन आयातुन आनी की समझी तान, आयतानी ठीक है। और जमा क्या होगा? आयातुन। तो ये आपको पता चल गया कि आयातुन जो है रफा कौन में से हालत में? रफा रफा में है। और जिन्स क्या है इसकी? मुअन्नस मुअन्नस है, वेरी गुड। अच्छा, अदद कौन सा है? जमा। जमा है। अच्छा, नकरा है या मारफा है? नकरा। नकरा है, ठीक। ये चारों आपने सही बता दिया। बैयनात माने खुली हुई, वाज़े, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ है। तो बैयनात के माने होता है खुली हुई। तो खुली हुई निशानियाँ, इसको हम आयातुन का मतलब खुली हुई होगा। है, आया हमारी उर्दू में नहीं है लफ्ज़ कि हम नहीं। जमा के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी है कि हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे नेक लड़का, नेक लड़की, दोनों के लिए नेक इस्तेमाल करें। लेकिन अरबी में हम लड़के के लिए सालिहुन इस्तेमाल करेंगे और लड़की के लिए सालिहातुन, ये बनाना आ गया। मैंने सिर्फ के लिए सबका बनवाया था कि सालिहुन है तो तनवीन ख़त्म करके उस पर ज़बर दे के बोलते और फिर बोलते पे तनवीन लगा दें। तो है? नहीं, सॉरी, कुछ बहुत सारी कुछ ये अच्छा है। ये नकरे के लिए हमारे पास कोई है नहीं, लेकिन हम खास तौर पे लगाते हैं इस तरह के चंद कुछ। तो इसका नाम इसकी जो हम बनाएंगे उसके लिए तो क्लियर साइंस, साइन माने निशानियाँ, साइंस। अच्छा, इधर आइए।
जब भी मौसूफ किसी भी वजह से अपनी रफ़ा, नसब या जर की पोजीशन इख्तियार करता है तो सिफ्त को भी उसी तरह इख्तियार करनी पड़ती है। यहाँ पर देखें, ये अगर हटा दें, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा ताकि पता चले, ये प्रीपोजिशन की वजह से जो है वो ये था शैतानुर रहीम। इसमें ना मारफा है और शैतानुर रजीम ये होगा ना, है रजीम रजीम है यार, सॉरी खुदा माफ करेंगे। तो मारफा है। शैतानुर है, मारफा मारफा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और रफाई हालत इसकी जिन्स कौन सी है? ठीक मुज़क्कर है। मुज़क्कर अच्छा, अदद कितना है? वाहिद है, अदद वाहिद वाहिद है और मारफा मारफा है, ठीक है। रफाई हालत है नहीं, हाँ, रफ़ाई हालत। अब ये लफ्ज़ आने की वजह से, मिन की वजह से, प्रीपोजिशन है नहीं, जब भी प्रीपोजिशन जब भी आती है मजरूर हो तो जाएगा। इसको ये ख़त्म करके ये लग जाता है, मिन लगा। मिन लगने के बाद ये हुआ कि ये इधर आ गया, शैतानी हो गया। तो अब ये भी इसके साथ अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, मिन शैतानिर रजीमी। क्लियर? इसको रजीमी को करें तो मुस्तकिल दुत्कारे हुए, मुस्तकिल ख़ास तौर पे मैंने लिखा है। मुस्तकिल ये कि जितनी भी इस वज़न पे, फ़ाइलुम के वज़न पे जितने भी लफ्ज़ काम लग आएंगे आएंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। मुसलसल। जैसे रहीम है, कंटिन्यू रहम करने वाला है, ठीक है। मुसलसल। आदमी राहिम हो सकता है, रहीम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो है ना मुस्तकिल जो है दुत्कारा जाता है। अब देखें ना कितनी दफ़ा आज़ुल्लाह पढ़ते हैं, पनाह कितनी दफ़ा चाहते हैं, हर नमाज में, हर जगह। इतने लोग हैं माशाल्लाह, अरबों मुसलमान हैं, मुसलमान तो अरब में आ गए, तो अरबों मुसलमान है ना पढ़ना चाहते, तो मुस्तकिल दुत्कारा जा रहा होता है। तो फ्रॉम दी कुर्सेट दी इसलिए लिखा है क्यों? हल लगा हुआ है, तभी मारफा हुआ ना। इसमें कहते थे कि हमारे उसमें है, दी का कोई पता नहीं चलता। अच्छा, एक और लफ्ज़ है। अब इसको देखिए, अब एक चीज़ आप समझ गए, ये है अज़ाबन अलीमा। अज़ाबन को देखेंगे क्योंकि ये मौसूफ है। तो अज़ाबन किस उसमें है? आराबी हालत क्या है इसकी? नसब सही बोला, क्या बोला? नसब। नसब, वेरी गुड, नसब है। जिन्स कौन सी है? इसमें चार्ट में घुमाएं, मुज़क्कर है। अच्छा, अदद के हिसाब से क्या है? वाहिद। और नकरा है या मारफा है? मारफा मारफा है। अन उन इन क्या है? मारफा है या नकरा? नकरा है। वेरी गुड। तो नसब में है इसलिए अज़ाबन है, इसलिए जो मौसूफ होगा वही, ये अलीमुन है, दर्दनाक अलीमुन था, तो इसको भी अलीमन होना पड़ा क्योंकि ये इसका मौसूफ ही था, इसका सिफ्त है। आखिरी हम करते हैं ये वाला अल अमलू, ये मौसूफ है। अल से पता, पहले तो आपने बताया कि ये अराबी हालत कौन सी है? रफा वेरी गुड। ये देखिए पहले ना, ये रफा है
है मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्कर, और अल लगा हुआ है, इसकी मार्फा है। तो मार्फा के हिसाब से ये सालेहुन था, इसे हमने अल अमलु सालेहुन। सालेह माने नेक होता है या बादशाह होता है, नेक अमल या नेक काम, और ये दी राइटियस डीड, दी लगाया इसलिए क्या की वजह से, हमारे इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, पाठशान के तो कोई पंचायत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं अपने तौर पे वो समझ रहा हूँ कि शायद कुछ बहुत आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं इससे पहले कि यहाँ आऊँ आपसे यही वो करता हूँ कि आप मुझे बताइएगा ये मैंने एक बना दिया इसलिए कि बाकी आप ये कौन सा है, आरबी हालत कौन सी इसकी, रफ़ाई हरफ, रफ़ाई मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्कर अदद वाहिद, वेरी गुड, और नकरा या मार्फा नकरा, वेरी गुड। तो ये आपने बता दिया, इसका उर्दू में तर्जुमा जो करेंगे तो एक नेक आदमी, लड़का, ठीक है, रजुल मने आदमी। एक इसलिए कि हमें उर्दू में एक चांस मिला हुआ है कि हमें जब नकरा बताना हो तो हम एक या कोई ऐसे कह देते हैं, ना कहें तो हमें पता नहीं चलेगा, वन लगा दें आगे, हैं वन एक लगा दें, एक से पता, नेक लेकिन हमें लड़का मार्फा में पता पता चल नहीं जाएगा। चलता। अगर सिर्फ नेक लेकिन लड़का लिखा, हाँ जैसे हैं नेक लड़का अगर लिखेंगे तो लड़का जो लिखा है उससे तो पता नेक चलेगा। लड़का लिखेंगे तो वो मार्फा अपनी उर्दू के हिसाब से समझेंगे ये मार्फा है, ये प्रॉब्लम देंगे। लेकिन इंग्लिश में जब इंग्लिश में जब करेंगे तो ए राइटियस बॉय, ठीक है ना, तो वो अच्छा नेक जो है उर्दू में हम लिखते हैं, अरबी में तो ये मतलब मुनासिब जुमला नहीं है ना, अरबी में इसका क्या मतलब है? अक्सर मना किया जाता है कि नेक नहीं कहना, सोले कहना। असल में कुछ स्लैंग लैंग्वेज में असल में अरबी की ज़बान ऐसी है कि जो बहुत सी ज़बान हमारे इसमें भी है कि एक में गाली है और एक में केरला की एक ज़बान में ऐसी था कि सीख लूँ थोड़ा सा, तो मेरे अदायगी सही नहीं थी, उसने कहा तुम बोलते हो तो लगता गाली दे रहे हो, तो तुम मत बोला करो, तो क्योंकि उनको आवाज़ ऐसी होती है कि उससे उनका एक्सेंट ऐसा है। एक्सेंट ऐसा होता है। तो नेक जो है वो एक है, बताएंगे कभी पर्शियन का है सर, पर्शियन से नेक लगते हैं, पर्शियन का है इसलिए नहीं पर्शियन की वजह से नहीं, इसके माने मुझे पता है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, वो स्लैंग लैंग्वेज है, बुरा लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है तस्निया, या आप खुद बनाएं, क्या करूँ मैं तो तस्निया बनाना है, तस्निया बनाने वाले कहानी हैं, वल्दान है। वेरी गुड, यहाँ बना रहे हैं, इसमें आप बनाता क्या है मार्फा है? सालिहान, और सालिहान, अब आपका एक और इंसान हो रहा है, यानी दो नेक लड़के, पानी नहीं दिख रहा, दो नेक लड़के, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए वाला दाने की जो वालदुन की जो जमा है वो क्या होगी? एक मिनट मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इसमें ज़ात जितनी भी है उसकी जमा मुकस्सर बनती है, इसमें सिफत जितनी है उसकी जमा सालिम बनती है। तो ये है इसमें ज़ात, तो क्या होगा? अल
नहीं वो मैं लिखूं कि आप बताएंगे? मेरे दानों नहीं, इसकी हम लोग भी इस्तेमाल करते जमा हैं। मुकर और घर में सब खैरियत है और वो सब ठीक ठाक है। औलाद, औलाद ठीक है, औलाद सालिहून औलादुन के साथ क्या आएगा? इसकी इसकी वो तो है जमा आएगी ना, और ये जो है सिफ्त है तो क्या आएगी? सालिहून गुना की बात है। औलाद, ठीक है, सबको क्लियर हो रही है बात? सालिहून और हाँ, हो गए, सालिहून, नून, क्या मतलब क्या pronunciation? सालिहून है ये साले हूना। सालिहून। अब इसका आप मुअन्नस बनाए, वालिदातुन नहीं मुअन्नस बनाए। वलद के मुअन्नस क्या है? बेंतुन बिन्तुन सालिहून मुअन्नस है। सालिहून 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 सालिहतुन साले सालिहातुन। अभी तो वाहिद का वो बना रहे हैं ना ऊपर सबसे ये पहले तो मगर मुअन्नस की मुअन्नस वाहिद होगी ना। सालिहातुन बिन्तुन आपको लगता है खाना भूल गए कि जैसे साले है ये इसकी मुअन्नस बनाने तो क्या करते थे? साले आतुन इसको खत्म करके बोलते हैं खबर लगाते थे और बोलते के बाद लगाते थे। तो साले आतुन हो जाता था मुज़क्कर और मुअन्नस। ये था तो बिन्तुन सालिहातुन। अब इसकी ड्वेल बनाए। ड्वेल सन मुस्ना तस्निया बिन ताने होगा सारे आतन, वो तो बाद में होगा, पहले इसका बनाएंगे ना। ये महसूस बिन्तान बिन ताने। अब सारे हाँ ठीक है। आइए आज और इम्तहान आपका कि इसका निसा जमा निसा जमावी बनात बना। बना निसा तो इमरातुन की होती है, इमरातुन मन औरत, और निसा जो है इसकी जमा। बिनातुन तो बना दो पेश लगाए, सही लगाया। सालिहातुन सालिहात सालिहातुन कुछ भी आपने वैसे एक बुद्धि तौर पे अच्छा रिजल्ट पेश किया। तो ये हमने तकरीबन सब चीज़ को कवर किया। एक चीज़ में जो आप लोग को बताया था, यहाँ आया काला पत्थर। काला पत्थर का क्या होगा? ब्लैक स्टोन है ब्लैक स्टोन ब्लैक स्टोन भी है, लेकिन काला पत्थर से आप बहुत वाकिफ है, इसलिए कह रहे हैं। अच्छे अस्वद अच्छा, दूसरी बात ये कि अस्वद जो है ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है कि पत्थर तो नहीं बताया था, जमीन का था। अस्वदु ये तो कलर है। अस्वदु मुज़क्कर है। मुज़क्कर है मुज़क्कर। और इसकी मुअन्नस क्या हो गए? अलिफ तोड़ जाएगा। अभी तो वेरी गुड।
एक काम बहुत अच्छा बताया उसके बाद जो है अलिफ हटा दिया। ये सफराऊ है ना, हाँ। सवादा सवाद ये होगा। अच्छा अब बताइए, जर्द गाय था इसलिए आपने क्या कहा था? सही किया था, सफराओ। इसका सफराओ का रंग का मुजक्कर क्या होगा? अस्फर। अस्फर। ठीक है ना? अब तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह काफी किया, यानी जो पढ़ा है आपने उसको इस्तेमाल भी किया। ये तो आपने कर दिया। अब मैं इस तरफ आऊंगा। ये आयत है बाकायदा, आप कुरान में पढ़ते हैं। कुछ चीज मैं बता दूंगा आपको। ये था इसलिए ये सिर्फ एहतियातन बता रहा हूँ, बाकी जगह ऐसा नहीं है। यहाँ इत्तेफाक से ऐसा लफ्ज आ गया। ये जो है इन्ना जब भी आएगा तो ये नसब में चला जाएगा। अंता जो है नसब में जाएगा। नसब की मैंने बताई थी, अंता का क्या है? अंता का जो अटैच है वो क्या होगा? अंतुम अंतुम अटैच का। तो ये इन्ना का यूं बना है, इन्ना का। ठीक है। और बेशक का माने आप, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से चेंज हुआ था। आप ला माने जरूर, लाजमी। अला, अला माने ऊपर या पर, याद है आपको? प्रीपोजिशन अला माने पर, अस्सलाम अलैका कहते ना, अला माने पर। तो जरूर हम आप खुलूक माने किरदार होता है। अजीम माने बहुत बड़ा किरदार। आप बहुत बड़े अजीम किरदार पे हैं, बहुत बड़े अहम उस पे अखलाक के बहुत हाई पैमाने पे। ठीक है। कालत, ये भी मैं बताऊंगा। हम वेस्टर्न लोग जानते हैं कि कालत क्यों लिखा है। कालत मोहन्नस लिखा है। काला था मुजक्कर, उसने कहा। कालत उस मोहन्नस ने कहा। तो कालत उसने कहा यानी शी ने कहा। अजूजुन अकीम यानी एक बांझ बूढ़ी। समझे? अकीम माने क्या होती है? बांझ। अजूज माने बूढ़ी। अजूजुल अकीम ये क्या है? बुढ़िया। बुढ़िया क्या? मौसूफ, उसकी सिर्फ क्या है? अकीम। ठीक है। ले ताकुलू, ले माने होता ताके। ताकुलू मैं बता दूं अकला से होता है। अकला माने खाना। अकला उसने खाया। ताकुलू मजारे है, तुम खाते हो। ताकुलू तुम लोग खाते हो। मिनहू इससे। लहमन क्या कहेंगे? गोश्त। और लहमन का तर्जुमा क्या करेंगे आप? गोश्त को करेंगे ना, याद आए? गोश्त को पेश होता तो गोश्त नहीं कहते। लहमन गोश्त को। तरियन माने ताजा। तो क्या इस तर्जुमा पढ़े? ले ताकुलू मिनहू लहमन तरियन। से बोलिए जरा, सब बोले। ताकि तुम लोग खाओ इससे ताज़ा, पहले उर्दू बोलेंगे ताज़ा। ठीक है ना? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। और इसमें अगर कोई भी मेरी कोताही जो हुई होगी, इसमें अगर कोई ऐसी बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं हमेशा तस्लीम करने को तैयार होता हूँ कि मैं बोलते हुए गलती करता हूँ और कर सकता हूँ। और आप लोग मुझे बताते हैं कि ये देखिए आपने गलत कर दिया, तो मुझे कि मेरे बताने वाले मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ हुई जो आप मेरे बोलने की वजह से आप कंफ्यूज हो गए हों, वो आप पूछ लें कि भाई ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल में मुझे तो महसूस हुआ कि आप लोगों ने अच्छी तरह जो किया उसमें सब समझ में आया। यानी कुछ नहीं तो 60% 70% सबका वो था।
کوئی ادھر سے صحیح جا رہا تھا، کوئی ادھر سے صحیح جا رہے تھے سبھی کوئی. ٹھیک ہے.